جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سعید خان سدوزی اور آپ میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد نیوز اردو دیکھ رہے ہیں۔ آج خان صاحب نے عمران خان کی طرف سے خان صاحب کو رہا کرو کے لیے 4:30 بجے پورے پاکستان میں لیڈرشپ اور سب نے خان کی رہائی کے لیے ریلیاں اور جلسے نکالے۔ اسی طرح اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے 4:30 بجے لوگوں نے احتجاج کرنا تھا، تو اسلام آباد انتظامیہ نے پہلے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پولیس آفیشلز اور پولیس وہاں پہ لگا دی تھی، جس میں اسلام آباد پولیس کے لوگ، ایف سی کے لوگ اور دیگر جو لوگ پہلے سے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ جو ہی وہاں پہ پی ٹی اے ورکر آئے ہیں، عامر مغل صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے انتظامات پہلے بھی کیے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں عامر مغل صاحب اور بقایا کافی سارے وکلا ہیں۔ علی بخاری صاحب تو گرفتار نہیں ہوئے، لیکن میں جو ورکرز ہیں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں۔ یہ ملک عامر مغل صاحب جو ہیں اس کا تعارف تھوڑا سا اس طرح میں کروا دوں گا کہ حلقہ 46 میں سے وہ ایم این اے کے امیدوار ہیں، اور فارم 45 کے مطابق انہوں نے یہ عقیل انجم صاحب کو ہرایا، تقریباً 50-60 ہزار ووٹ سے ہرایا ہے۔ تو آج کل وہ ہٹ پہ ہیں، پہلے بھی اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا کوئی چند دن پہلے، تو رہا وہ چند دن پہلے اس طرح کے جب خان صاحب وغیرہ تو یہ سر جیل میں تھے، اور جو مرکزی دفتر پی ٹی آئی اسلام آباد کا G8 میں تھا، وہاں پہ جب رات کو آ کے انہوں نے آپریشن کرنا شروع کیا تو اس وقت عامر مغل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اس وقت بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج پھر چند ورکروں کے ساتھ انہوں نے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور پیدل وین میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن بقایا ورکر جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کی فسائتیت ہے، جو یہ کر رہے ہیں، یہ سارا ایلیگل ہے۔ یہ جو ہوتا ہے احتجاج ہوتا ہے، یہ بنیادی حق ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قانون نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اس ملک میں۔ تو ہمارے لیڈر اندر ہیں، لیکن یہاں جو ہوا ہے وہ میں نے ساتھ فوٹو جو ساری لگا دی ہیں، دوسرا ان کی گرفتاری کی، احتجاج کی، تو اس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ خان کے لیے ہم سب حاضر ہیں، جتنے بھی ہیں پی ٹی آئی کے ورکر سوشل میڈیا پہ، تو یہ مہم جاری رکھیں گے، اور یہ آج پورے پاکستان میں سسٹم چلائیے، جتنی گرفتاریاں کر لیں، جو دل کرتا کر لیں گرفتاریاں۔ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، ان کا جذبہ دیکھا، سب دیکھا، تو یہ کسی بھی صورت اس کا رستہ نہیں روک سکتے۔ اور دوسری جانب جو عدلیہ نے بھی انصاف فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ محمد عباس صاحب سرگودا والے جو جج تھے دہشت گردی کورٹ کے، انہوں نے خط میں سب کچھ بتا دیا ملک شہزاد، جسٹس شہزاد صاحب کو، جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لاہور کے تھے۔ اب وہ ان کو پروموشن دے کے اسلام آباد سپریم کورٹ کے لیے ان کو نامزد کر دیا گیا، تو ان کو باقاعدہ طور پر ان کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا، جوڈیشل کمیشن نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں عدلیہ کا جو پریشر ہے، عدلیہ پہ کب تک یہ کس طرح پریشر رہتے ہیں، لیکن یہ جو ایجنسیوں کو ننگا کر دیا گیا ہے، ننگے ہو گئے ہیں، اور اس طرح خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ ایف آئی آر جھوٹی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ تقریباً ہم ورکروں پہ سب پہ اتنی ایف آئی آر جھوٹے دے چکی ہیں، تو یہ خبریں آ رہی ہیں پورے پاکستان کے، گرفتاریاں انہوں نے ہر جگہ پہ کی ہیں۔ اور یہ جو بجٹ آیا، بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ بجٹ تو عوام پیس بجٹ ہے، کہ آپ اگر بجٹ دیکھیں تو صحت اور تعلیم جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فوج کے لیے جو بجٹ آیا اس کا میں آپ کو ایک فگر بتا دیتا ہوں کہ ایک سال کے لیے ایک سپاہی کو، ایک کانسٹیبل کو 1 کروڑ روپے تقریباً، اور ایک دن کے، ایک مہینے کے 25 لاکھ روپے یہ ان پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اور جو ان کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ صرف پاکستانیوں پہ، اپنی قوم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو میں نے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں ویڈیو، وہ آپ دیکھیں، آپ کو اسلام آباد سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کتنا ظلم، فاسیت اور یہ بربریت کا ماحول بنا ہوا ہے، اور کسی کو بھی جرت نہیں ہے احتجاج کرنے کی۔ گھسیٹ کر ورکروں کو پکڑ رہے ہیں اور ورکر احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ گرفتاری کے باوجود بکری کا نشان بنائے، انشاءاللہ خان رہا ہوگا۔
किसको गिरफ्तार कर रहे हो? सामने देख सकते हैं पुलिस की बड़ी तादाद भी मौजूद है और प्रिजनर वैन भी पहुंच चुकी है। पीटीआई के कारकुनान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुएब शाहीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अली बुखारी साहब मौजूद हैं और कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद भी इस वक्त आप देख सकते हैं। लेकिन जो सामने है पुलिस है, पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। क्या इनको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा प्रेस क्लब के बाहर या नहीं, क्योंकि दफा 144 यहाँ पर नाफिज की गई है। प्रिजनर वैन्स, कैदियों की जो वैन्स है वो भी पहुंचा दी गई है। गिरफ्तारियों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आज इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है और ये सामने आप देखिए पुलिस है, बहुत भारी नफरी पुलिस की यहाँ पर तैनात की गई है। अब देखते हैं कि ये जो लीडरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो रहनुमा है, जो कारकुनान है, इनको यहाँ पर आगे जाने दिया जाता है या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इनको आगे जाने, ये पुलिस करीब आ चुकी है, पुलिस करीब है और जो रहनुमा और कारकुनान है वो भी इस वक्त आगे आ चुके हैं और अब यहाँ पर रुक चुके हैं। पुलिस और जो पीटीआई के रहनुमा है वो इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। शदीद नारेबाजी इस वक्त की जा रही है पीटीआई के कारकुनान की जानिब से। इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है और सामने जो पुलिस है, खवातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और मर्द पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस क्लब के बाहर ये मुजाहिरा अनाउंस किया गया था पीटीआई की जानिब से इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अब यहाँ पर हमने देखा कि काफी भारी नफरी पुलिस की मौजूद है, प्रिजनर्स वैन भी मौजूद हैं और पीटीआई के जो रहनुमा है, जो कारकुनान है, वो आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनको यहाँ पर आगे जाने दिया जाता है या नहीं। ये पुलिस इस वक्त आगे आ चुकी है, पुलिस आगे बढ़ रही है, पीटीआई कारकुनान भी आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त गिरफ्तार किया गया है कारकुनान। इस वक्त हम इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में सब इकट्ठे हुए हैं। हम ये समझते हैं कि आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के एक ऑनेस्ट लीडर इमरान खान को नाहक जेल में बंद किया हुआ है। ये यजीदियत का दौर बिल्कुल जल्दी ख़त्म होगा। हम उसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हम इमरान खान के सिपाही हैं। हमने इमरान खान की रिहाई तक सुकून से, चैन से नहीं बैठना। हम पूरे पाकिस्तानियों को ये दावत देते हैं कि आज जो पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है वो बाहर निकले, इन यजीदियत को, इन यजीदियों को बाहर ख़त्म करे और इमरान खान को बाहर निकाले। जी अली बुखारी साहब, आप क्या कह रहे हैं? जी इंशाल्लाह जी, आप देख रहे हैं कि आज का जो एहतजाज है, ये एहतजाज जो है ये इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए है, जो कि नाहक बेगुनाह जेल में अभी उनको रखा गया हुआ है। उनके जितने केसेस बनाए गए सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और उन केसेस के अंदर वो बरी भी हो चुके हैं और उसके अंदर जमानत भी हो चुकी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे कि आज इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी एक बयान दिया और जो हालात चल रहे हैं, हमारे लीडर इमरान खान साहब को, इस मुल्क के लीडर, इस कौम के लीडर और पूरी उम्मत मुसलमान के लीडर है इमरान खान साहब, जिनको नाहक जेल में रखा हुआ है, उनकी आज़ादी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा लीगल राइट है, जो हमारा कानूनी हक है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमें हमारा दस्तूर मुहैया करता है, हक उसको दे रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल की क़यादत में निकल पड़े हैं। आप मनासिर देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान की तादाद आप देख सकते हैं। ताहत निगाह अवाम ही अवाम है और अब ये जो रहनुमा है, ये कारकुनान है, प्रेस क्लब की जानिब गामजन है। अब देखते हैं, चूंकि आज इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है और पीटीआई के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। प्रेस क्लब की जानिब रवा दवा है, क्या इनको आगे जाने दिया जाएगा या नहीं,
ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्योंकि इस वक्त प्रिजनर वैन्स भी वहां पर पहुंच चुकी है और जो कारकुनान और रहनुमा हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंचने के लिए निकल पड़े। आप देख सकते हैं शुएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं और अली जो आमिर मुगल साहब हैं वो भी इस वक्त लीड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आखब में कारकुनान, खवातीन, बच्चों की, फैमिलीज की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बाद में इंटरव्यू बाद में जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कारकुनान यहाँ पर आ रहे हैं। कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 ये आप देख सकते हैं कारकुनान जो है गामजन है नेशनल प्रेस क्लब की जानिब। तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 वो भागा ना बीमार कैदी नंबर 804 तेरा यार कैदी नंबर 804 मेरा वीर तेरा यार खुदा कर दो किस सरकार वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पर पीटीआई के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद निकल आई है। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की शहरी इस वक्त सड़कों पर हैं और इमरान खान की रिहाई का आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में मुतालबा किया जा रहा है। नारेबाजी इस वक्त शदीद की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे बताएं। आज हमारा पुरअमन एहतजाज है और इन्होंने जो है हमारा आज पुरअमन एहतजाज था खान साहब की रिहाई के लिए और इतनी पुलिस आई हुई है कि इंतहा से ज़्यादा, मतलब 3 दफ़ा हम लोग डॉज दे के आए हैं, हमें खड़े ही नहीं होने दे रहे। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा कारकुनान MNAs क्या करूं? ओके, ऊंचा ही बोलते हैं, मैं ऊंचा बोलता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशनें लगी हुई थी। उन पिटीशंस में हमारा कहना यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो इस नुमाइंदगान पे मुश्तमिल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट थे और 13 जनवरी को जिनको निशान नहीं मिल सका सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की वजह से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से ही जीते थे और उन कैंडिडेट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था।